Time to discuss about Geoffrey Chaucer. Yes, so Geoffrey Chaucer, the Canterbury is the most dominant block of MEG1 British poetry, and the students of MA English and English honors need to know about Canterbury. What is a Canterbury and how we guys need to clear the concept of Canterbury. The first thing that we guys need to clear भैया जैफ्री चौसर ने इसके अलावा बहुत कुछ किया था और बड़े सारे कंप्लीट काम थे. ये काम कंप्लीट नहीं था, दिस नॉट कंप्लीट वर्क. इट वाज प्लान्ड टू बी राइट ऑन 120 स्टोरीज, लिखेगी सिर्फ 27. The reason behind it we're going to discuss along with the certain facts that we guys need to know about Geoffrey Chaucer works and Canterbury. So those who are worried about the block 1 preparation, so guys this video is just for you. Just follow the video and clear each and every concept from the beginning till the last. Don't forget to subscribe the channel because my previous channel Classic Way of Learning was being hacked and terminated by YouTube. Right now I'm going to recover it very soon, trying my level best. But till then, here in this channel you guys are going to get all the videos that you need. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें immediately. Follow the basics. Classes चल रही हैं, crash course going on. You can join the crash course or crack the papers easily. चलो यार, let's start Canterbury Days. Canterbury Days कहानी शुरू होती है जेफरी चौसर से. सर जेफरी चौसर का एरा बेसिकली 1300 टू 1400 थे. बेसिक डोमिनेंट एरा 1350 टू 1430 का लिया जाएगा. अब आपने कहा यहाँ पे हमारे लिए समझना जरूरी है जेफरी चौसर राइटिंग स्टाइल क्या था, कैसे लिखता था. थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेटिव में इसका यूजेस था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसको आप क्लियर कर रहे हैं. यहाँ पे एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन ऑफ प्लेस, एक्शन ऑफ मूवमेंट वो भी क्लियर करेंगे. We're going to address each and every one. सबसे पहले तो नरेटर की बात करें. The one who is the narrator of the story, the Canterbury Days. The narrator is a primary narrator and that's an anonymous named member of the privilege. उनमें से कोई एक था, कोई जेफरी चौसर नहीं था. हैरी बैले भी नहीं था, वो होस्ट था. पहले क्लिक करना है, नरेटर अलग है, होस्ट अलग है और जेफरी चौसर अलग है. तो ये लोग 30 मिलके होते हैं. These are 30 people. Then, who is not been described in the entire story of Geoffrey Chaucer? Sir, story है, some story, क्योंकि इसको स्टोरी की फॉर्म में ही आपको बनाया. आपने कहा पोएट्री अलग फेज में ली गई. इट्स ऑल अबाउट पिलग्रिमेज. जो कहाँ जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं. सर पिलग्रिमेज हम लोग मानते हैं, साधु संतों को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं यार, ये लोग अलग. अच्छा, इसके अंदर एक चीज ऐड कर देता हूँ. हम बोलते हैं जेफरी चौसर को बोलते हैं कोर्ट पोएट. कोर्ट पोएट का मतलब वो नहीं जो कोर्ट में पोएट्री करता है. Court poet is the poet who shows the real situation. Yes, the reality of the real situation of the society जिसको belong करता है. Through the character system दिखाया. That's why he was a court poet. There is a major question that how Geoffrey Chaucer used the fable. उसने कैसे यूज किया है फेबल को इन हिज वर्क. तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे नोट से मिल जाएगा. यू गेट द आंसर. द लैंग्वेज दैट वी यूज्ड वो भी उसमें मिल जाएगी. आपको आंसर वहां मिल जाते हैं उसमें. Come to the major point. Point of view. Basically, from a journal point of view, the prologue of the Canterbury Tales, it's the first person. Yes, I repeat, the first person who describes each and every pilgrimage with their appearance. जिसका बोलते हैं prologue. जो डिस्क्रिप्शन ना हर पिलग्रिमेज की डिस्क्रिप्शन दी गई, उसको आपने prologue बोला है. ये prologue था यार, जिसको फॉलो किया गया शुरू से क्या आखिर तक. जब नरेटर डिफरेंट पिलग्रिमेज को बताता है वन बाय वन along with the tales. आप बोलते हो सर इसमें नरेटिव टेक्निक omniscient थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को डिफाइन किया गया. ऑमनिसेंट थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब किया गया, जो आपको बताता है रीडर का थॉट प्रोसेस एंड द एक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. सारे पिलग्रिमेज के एक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया. अब आपको ध्यान रखना है टोन का. टोन कैरेक्टर टेल इनकॉर्पोरेट करते हैं इंप्रेसिव रेंज ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड लिटरेचर. यस, लाइफ और लिटरेचर दोनों डिफाइन करती है. द टेस्ट ऑफ द टर्न्स टेरिकल, एलिवेटेड वॉइस, अर्थली, बाउडी एंड कॉमिकल. टाइम टू टाइम हर कैरेक्टर अपने फेस के हिसाब से अपनी कहानी बताता है, जिसमें कई बार ह्यूमर क्रिएट करता है, कई बार कॉमिकल आता है, कई बार वॉइस भी होती है, कई बार आप हिस्टोरिकल भी बता रहे. तो डेफिनेटली अलग कैरेक्टर्स अलग चीज बताएंगे. द रीडर शुड नॉट एक्सेप्ट द व्यू और नेम व्यू पॉइंट ऑफ द चौसर राइटिंग. आप बोलते हो चौसर का राइटिंग का कोई एक व्यू पॉइंट नहीं मान सकता, क्योंकि हर बंदा अलग है. हर बंदा अलग सर डोमिनेट रहेगा, पास्ट टेंस डोमिनेट रहेगा. आप बोलते हो सेटिंग जिसकी टाइम की बात करता हूँ, it is around late 14th century. Yes, after 1381. After 1381, exactly it was the period after 1381. ये setting of the time था जो हमें clear हो चुका. Along with this, we'll go into the setting. Sir, place जगह कौन सी थी? Camden Inn.
जगह दी टाइमलाइन एंड द रोड द कैंटरबरी टेल। चलो भाई आज यहाँ तक सबने लिख लिया और सबके सब ऑन टिप भी कर रहे हैं बेसिक्स को। उसके बाद हम आते हैं प्रोटैगनिस्ट पे। सर हर कहानी में प्रोटैगनिस्ट है। अब वो तो डोमिनेंट स्टोरीज होता है, डोमिनेंट स्टोरीज मतलब टेल्स अलग रखते हैं। सबसे पहले नाइट की बात करता हूँ, तो नाइट का जो हमारा टेल है उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो पैलमोन एंड एर्पिक है। आपने सर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज प्रोटैगनिस्ट आर पैलमोन एंड एर्पिक। आपने पढ़ा होगा, टेल को भी पढ़ा होगा प्रीवियस चैनल पे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो डेफिनेटली आपको क्लियर होगा, नहीं तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। वाइफ ऑफ आप में हमारे पास एरेंट नाइट एंड लॉथमन लैक था, जो पूरा डिफाइन करता है क्या है लॉथमन है, याद होगा जिसने रेप किया था उसका। उसके बाद वो ढूंढ रहा था कि भैया मुझे मिल जाए, कहाँ से सोल्यूशन मिलेगा। नन प्रीस्टेड में रोस्टर चैटिसलर डेफिनेटली वो है और डोमिनेंट भी है। अब तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट एंटायर स्टोरी ऑफ कैंटरबरी इज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर्स का मैनिफेस्ट था, जहां पे मोस्टली दे विल बी इन्वॉल्व इन सर्टेन क्लैशेस। सोशल क्लास को डिफाइन करते हैं, डिफरेंट डेज को हाईलाइट करते हैं, प्रोफेशंस को डिफाइन करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ क्लैशेस बिटवीन द सेक्सेस, उसको हाईलाइट किया गया। along with there is a resistance of the host somewhat tyrannical leadership, उस लीडरशिप को भी हाईलाइट करता है। सर ये सारी चीज चल रही थी, तो यहाँ पे हमें कैंटरबरी टेल में सबसे जरूरत किस लिए जानना, नरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू विद द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम्स। जहाँ पिलग्रिम में अलग अलग लोग हैं, अब हम किसको पढ़ेंगे? क्या मैं जनरल प्लॉ ऑफ कैंटरबरी टेल को पढ़ूं? तो जनरल प्लॉ ऑफ कैंटरबरी टेल एक्चुअली है क्या? जनरल प्लॉ ऑफ कैंटरबरी टेल एक्चुअली is all about the introduction of all the pilgrimage। बड़े ध्यान समझना, अब आपके लिए मेजर चीज शुरू हो चुकी है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्चुअली द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द पिलग्रिमेज जो मेंशन किए गए फ्रॉम द स्टोरी, उनको हाईलाइट किया, उनको बताया जा रहा है। तो पहला पॉइंट में बताया भाई डिफरेंट पिलग्रिमेज उनके बारे में बताया गया। Will you to understand this? These are the people, those are being described here। पहला पॉइंट। दूसरा, जनरल प्लॉट में हमें कुछ पिलग्रिमेज या कुछ कैरेक्टर्स के प्लॉट और टेस्ट ऑन टिप होने चाहिए। I will be able to write down the moon, the night। Yes, I repeat, night वो डोमिनेंट है। नाइट उसके टेल को भी समझना आपने, उसके प्लॉट को भी पढ़ना, उसके टेल को भी पढ़ना। फॉलोड बाय स्केयर। स्केयर मोड डोमिनेंट है, चीजों को क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट्स को बताता है, आपको आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एलिसन द वाइफ ऑफ बाथ, वो डोमिनेंट लेडी। आप लोग तो सिर्फ 5 शादी कर चुकी, 6ठी की तैयारी कर रही, फिर भी कंपेयरिंग हरसेल्फ विद द किंग ऑफ सोलोमन। फिर हम बात करते हैं रीव की, देन मिलर, मॉन्क। यस मॉन्क, मॉन्क कहने को मॉन्क है, मॉन्क नहीं है, इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ भिक्षु जो होते हैं, नहीं वो नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, नन प्रीस्ट टेल। ये स्टोरी सारी की सारी क्लियर हो चुकी। तो ये तो जनरल प्लॉट है, जनरल प्लॉट कैंटरबरी टेल, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर, दैट इज रियली द डोमिनेंट वन। नेक्स्ट फेज हमारे पास होता है नन प्रीस्ट टेल। अब नन प्रीस्ट टेल की टेल की हो जी फेबल, बीस्ट फेबल है। चैंटिसल के बारे में, पैट्री उसकी वाइफ है, 6 मुर्गियां, उसकी एक मुर्गी 6 मुर्गियां। वो फेमस है मुर्गा क्योंकि उसकी मांग वो अच्छी है, उसकी मांग सुनने के लोग दूर दूर से आते हैं। एक्चुअली वो एक बॉम्ब में रहता है जो ओन करती है एक विडो, जिसकी 2 बेटियां भी हैं। अलॉन्ग विद दीज मुर्गा एंड मुर्गी, उसके अलावा 2 बकरियां भी हैं, उसके बाद 2 भेड़े भी हैं, ठीक है, और कुछ अलग जानवर भी हैं। तो कंप्लीट बॉम्ब बनता है उसका। लेकिन यहाँ जब मैं टेल शुरू था, नन प्लीज टेल, नन और प्लीज दोनों मिलकर कहानी सुनाई थी। तो उन्हें बोला भाई ये चैंटिस जो था, ही वाज नॉट फीलिंग गुड, उसको सपना देखा उसने एंड ही वाज नॉट फीलिंग गुड विद दैट ड्रीम। बहुत परेशान था वो, जाके उसको बोलता है आई हैव जस्ट सीन दैट ड्रीम कि भाई मेरे फ्लॉक्स आया, उसने मुझ पे अटैक किया, उसने मुझे पकड़ लिया। उसकी वजह से पागल था, आपको ज्यादा खा लिया होगा, तो तुमको डाइजेस्ट नहीं हुआ, डेफिनेट डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो तू जाओ जाके बांध दे, पीपल आर बीइंग वेटिंग, जा जाके काम कर, जो तेरा काम है। क्या करता है, मरता क्या ना करता, बीबी गया बोलेगा नहीं। नीचे आया, आगे बांध देगा, जैसे देख लगा उसकी नजर पड़ती है झाड़ियों में, वहां पे एक फ्लॉक्स नजर लगाए हुए थे, जैसे बांध उसको पकड़ ले। दिस रियली वो अलर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे फॉक्स देख ले भाई, इसने मुझे देख ली, अरे मैं तो तेरी बांध सुन रहा हूँ, हर्ड अ लॉट ऑफ योर वॉइस, यू रियली हैव अ ग्रेट वॉइस, so I'm here to listen that one। अब वो चढ़ गया सीरियसली, आंखें बंद की, बांध जिससे पकड़ उसे गला पकड़ लिया। अब तो चैंटिसल की हुई टाटा। लेकिन चैंटिसल स्मार्ट दिखाया गया, स्मार्ट, क्लेवर नहीं बोला, स्मार्ट दिखाया गया। वो चिल्लाता है तो बॉब के जितने क्रीचर सबके सब भागते उसको बचाने के लिए।
अब उस बेटे को बोलता भाई देख मैं तो मरूंगा लेकिन बचेगा तू भी नहीं, बिकॉज दे आर गोइंग टू किल यू। अगर तू बचना चाहता है तो डू वन थिंग, मुझे छोड़ दे, सो दे गोइंग टू लीव यू। बेटी को बात समझ में आती है कि उसके फेवर में थी, यूज ऑफ नेचर। वो उसको छोड़ता है, उड़ के पेड़ पे जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद बेटे को बोला चल भी मांग तो दे, नीचे आओ मांग दे। कहते भैया मेरे को एक बार बनाओ, बार बार नहीं बनाओ। तो ऑनेस्टली मैं भी एक बार बन गया हूँ, हैव टू गेट बना चैनल, आई कांट हेल्प इट नाउ। अब नेक्स्ट टाइम में कुछ ज्यादा उसमें सिक्योरिटीज लगाऊंगा, तो ये हम लोगों के लिए भी एक कहीं ना कहीं मैसेज है जो चीजें क्लियर करता है। तो गाइस आपको भी ध्यान रखना है कि हम स्टोरी को जब पढ़ते हैं हमें फील करना है। लिटरेचर दोनों फील है। इट्स नॉट दैट कि हम सिर्फ लिटरेचर को पढ़ना है, पढ़ना नहीं है सिर्फ लिटरेचर, नॉट फील करो लिटरेचर। द मोर यू फील इट द मोर यू क्लियर इट। आई होप यहाँ पे चौसर का कॉन्सेप्ट, कैंटरबरी डेज वाला कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई नो दैट द 12th you will going to have an exam, and along with you all other students those are doing MA English from other universities, कैंटरबरी डेज तो डेफिनेटली है आप सबके कोर्स में। तो गाइस कैंटरबरी डेज को ऑन टिप करो। किस तरह कोई दिक्कत लगती है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, you have my number on screen, 12 वीक में आया होगा। ठीक है, for the notes and online classes crash course, you can join my classes as soon as possible if you want to get your dream marks. Catch you very soon.